गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 3 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, जैसा कि आप सभी संगत परिवार जानते हैं, 3 PM ऑडियो सत्संग में हम आप सभी संगत परिवार के ऑडियो सत्संग शेयर करते हैं। गुरु प्यारी संगत जी, हमारे प्यारे गुरु जी महाराज सत्संग का श्रवण करवा कर ही हमारे अनेक अनेक कष्ट काट देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा संगत जी। संगत जी, आप सभी संगत परिवार जो स्वयं की आवाज़ में रिकॉर्ड कर हमें व्हाट्सएप पर सत्संग सेंड करते हैं, गुरु जी महाराज की असीम अपार कृपा से ही हम ऑडियोज़ को प्रोसेस करते हैं, वीडियो बनाते हैं और आप सभी संगत परिवार के बीच गुरु जी महाराज के श्री चरणों में समर्पित करते हैं। गुरु जी महाराज प्रत्येक सत्संग में उपस्थित होते हैं संगत जी। सत्संग के अंत तक जरूर बने रहिएगा। सत्संग के अंत में गुरु जी महाराज के महामंत्र का जाप जरूर करेंगे। गुरु प्यारी संगत जी, अभी आप सुनने जा रहे हैं आज का पहला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8803। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। Shukrana, 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 Guruji. Antam, Antam, Shukrana. Today, with Guruji's permission and blessings, I'm sharing my Shukrana Satsang on Sonu Uncle's platform from California. To start with, it is only with Guruji's blessings that I've eventually gotten a job in one of the best tech companies in the Bay Area. Shukrana, 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 Guruji. Antam, Antam, Shukrana. My journey started long back in the US, and never did I realize that there has been the universal power of Guruji, always behind me, giving me his hand, or rather holding my hand, to take me in the right direction, right places, meet the right people, and make me believe that I'm capable of anything and everything. He's always invisibly protecting me, being my strength and courage. I visited Guruji's temple when I was in grade 9 and 10, and then lost touch with him. Although his Sarup was always protecting me, in my kitchen, in my room, wherever I walked, wherever I went. This I realize now. Shukrana Guruji. My actual faith permeated and flourished when I was preparing for my technical interview rounds. There were supposed to be 4 in specific. The first one went extremely well. The second one did not at all. And that's when I felt like I was looking at the bottom of the barrel. Can I make it? Can I do it? Like, what is the point of doing the 3rd and the 4th round? But then, within an hour gap, I picked myself back up. And I just didn't pick myself back up. Guruji picked me up through his invisible power. And guess what? The 3rd and the 4th round went extremely well. Although, because of that second round, I was requested to do 2 more additional rounds. And that's when I got panicky. Do I have the capability of doing so? Do I have that tenacity? Do I have that energy and positivity inside of me? Where these 2 rounds are incredibly important and dependent on my selection. But I picked myself back up and trusted Guruji throughout the process. And those last 2 rounds were very special. And they were very incredibly special because a day before those 2 additional rounds was a day where I was feeling extremely exhausted but wanted to energize myself. So I ordered food online, and the driver who came to deliver my food, he had a SIM that had an area code of the Bay Area. And at the time when I was doing my preparation, I was not based in the Bay Area. So he was confused where exactly to place my food in the apartment complex. And I didn't pick up my phone at that time. But the area code that was given was of a Bay area code, a specific city in the Bay Area. And then the second call I got was for a specific city where the headquarters of the tech company is located in the Bay Area. And the third call, the last one, was for another Bay Area city area code. So the first and the third
area codes were the same. The second one was where the headquarters was located and what I was aiming for. And this all happened an evening before my two additional round interview. And the reason why it's very special is because it was a signal from Guruji that your interviews will be clear tomorrow. You'll do extremely well and it will be incredibly positive. And this took me by surprise because staying in the Midwest, there aren't many people who have an area code number of the Bay Area. And specifically for the city where the headquarters are for the tech company I'm currently working at. And this was when I teared up and I could not believe what Guruji had done for me. Those two additional rounds the next day went extremely well. And I got the offer and I'm here where I am at the moment. Shukrana, 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 Guruji. Antam, Antam, Shukrana. I have no words to thank you. Bless Guruji, Sonu Uncle, infinitely, who have shared my Shukrana satsang so quickly. Thank you, thank you, thank you. Thank you so much, Sangaji. May Guruji bless you always. Jai Guruji Maharaj. अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9693। गुरुजी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच संगत जी का सत्संग समर्पित है। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम। सोनू अंकल जी, आपको भी जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है आज का, और साथ ही साथ ये एक छोटी सी अरदास भी है गुरु जी के श्री कमल चरणों में। गुरु जी, प्लीज़ मेरा शुक्राना सत्संग और आपके श्री कमल चरणों में एक अरदास करने जा रही हूँ। प्लीज़ स्वीकार कीजिएगा मेरे मालिक, प्लीज़ स्वीकार कीजिएगा। सबसे पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी सत्संग बोलने में, सुनाने में जो भी गलती हो जाए कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा गुरु जी, कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा। संगत जी, मैं सिडनी ऑस्ट्रेलिया में बसी हुई हूँ गुरु जी के ब्लेसिंग से, संतोषी माता जी के ब्लेसिंग से। और आज सुबह अराउंड अमृत वेला के टाइम पे जब मैंने मोबाइल खोला तो गुरु जी का मैसेज आया हुआ था कि तेरी मम्मा के ऊपर बहुत बड़ा कष्ट है, जो मैं छोटे में काट रहा हूँ, उसका शरीर कमज़ोर होता जा रहा है, सत्संग सुन। सॉरी संगत जी, मुझे एग्जैक्टली मैसेज तो एग्जैक्टली याद नहीं है, बट उसमें लिखा हुआ था कि मम्मा के ऊपर एक बहुत बड़ा कष्ट है, उसका शरीर कमज़ोर होता जा रहा है और वो हमारी चिंता में हमेशा रहती है, क्योंकि मम्मा मेरे इंडिया में है और हम यहाँ, मैं ऑस्ट्रेलिया सिडनी में बसी हुई हूँ, काफ़ी दूर हूँ मम्मा से। तो एक ज़ाहिर सी बात है कि बीइंग अ मदर, माता को एक चिंता लगी रहती है अपने बच्चों की। तो गुरुजी ने ये मैसेज में कहा था कि बहुत फ़िक्र करी और थोड़ी बहुत टेंशन्स भी चल रहे हैं घर में, जो सिर्फ मैं मम्मा से शेयर करती हूँ। संगत जी, यकीन मानिए, जब वो सुबह मैंने सत्संग सुना तो सत्संग का जो टैगलाइन, पंच लाइन था, वो जब मैंने पढ़ा तो मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई थी, क्योंकि मैंने जहाँ गुरुजी बैठे हैं वहाँ हमें फ़िक्र करने की ज़रूरत ही नहीं है। और स्पेशली जब गुरुजी हमें कोई सत्संग भेजते हैं तो भेजते ही वो सत्संग सुनते ही हमारे कष्ट काट लेते हैं, पर तब मैं वो सत्संग सुन नहीं पाई थी। अभी जब वो मैंने सत्संग सुना तो उसमें दो संगत आंटी जी ने सत्संग में सुनवाया कि उनकी मम्मा के ऊपर जो कष्ट थे वो उन्हें पहले ही गुरुजी ने सपने में दिखा के छोटे में काट दिए थे।
और लेकिन उनकी मम्मा हॉस्पिटलाइज हुई थी और शायद अब वो रिकवरी स्टेज पे है। गुरुजी, सबसे पहले मैं आपका शुक्राना करना चाहूँगी कि आप सत्संग सुनवा के कष्ट हर लेते हो, कष्ट काट लेते हो। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख वार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। उसी सत्संग में आपने बताया था कि तेरी बेटी के ऊपर भी कष्ट है, तो मेरे बड़े बेटे की ओर से भी आप के श्री कमल चरणों में शुक्राना मैं अर्पित करती हूँ। स्वीकार कीजिएगा मेरे मालिक। आप ही पालनहार हो, आप ही रक्षक हो, आप ही ने जीवन दिया है मेरे मालिक, तो आपकी सुरक्षा कवच में आप ही रखोगे, आप ही हमें अच्छी हेल्थ ब्लेस करोगे। खास करके मैं अरदास करती हूँ गुरुजी, मम्मा को बिल्कुल सुरक्षित रखिएगा, अच्छी हेल्थ ब्लेस कीजिएगा और मेरे बच्चों के भी अंग संसार रहेगा जैसे आप हमेशा रहते हो मेरे मालिक। हमेशा उनकी रक्षा करना, सर्वत का भला करना, सभी बच्चों के अंग संग सहाय रहना, सभी संगत परिवार के बच्चों की रक्षा करना, सभी संगत परिवार की रक्षा करना। संगत जी, यकीन के साथ कह सकती हूँ कि गुरुजी ने जब सत्संग सुनवा लिया है ना, तो अब मेरे दिल में बिल्कुल सुकून है कि गुरुजी ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे मैं यहाँ उनकी बेटी यहाँ सिडनी में ऑस्ट्रेलिया में बैठ के मैं घबरा जाऊँ। मुझे पता है मम्मा ठीक होंगे। मैंने अब तक फ़ोन नहीं किया इंडिया, क्योंकि मैंने सोचा मैं पहले शुक्राना सत्संग शेयर कर लेती हूँ और इंडिया में वैसे भी बहुत अर्ली मॉर्निंग होगी वहाँ पे, तो शायद मेरा फ़ोन जाते ही वो कहीं डर ना जाए सारे घर परिवार वाले मेरे कि इतनी जल्दी कैसे फ़ोन आ गया, क्योंकि इंडिया ऑस्ट्रेलिया से अराउंड 6.5 घंटे अप्रॉक्सीमेटली 6-7 घंटे पीछे चल रहा है, 6 घंटे सॉरी। तो बस मैंने अभी फ़ोन तो नहीं किया, पर मैं गुरुजी से अरदास कर रही हूँ। उससे पहले मैं उनको शुक्राना भी कर रही हूँ फिर से। गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना आपका कि आपने सत्संग सुनवा कर ही मेरे मम्मा पे आने वाले जो शारीरिक कष्ट थे वो आपने कष्ट बिल्कुल काट लिए। मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ गुरुजी कि आज का दिन आप जो भी कष्ट आने वाले हैं मम्मा पे, मेरे बेटे पे, वो आप आने ही नहीं दोगे। आपने कष्टों को सत्संग सुनवा कर दूर कर दिया है मेरे मालिक, कोसों दूर कर दिया है, और आप मम्मा को नई लाइफ, नई हेल्थ ब्लेस करोगे और मेरे बच्चों को भी आपकी सुरक्षा कवच में रखोगे, उन्हें भी अच्छी हेल्थ, नई लाइफ, नई हेल्थ ब्लेस करोगे मेरे मालिक। सत्संग सुनवाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, एक रिक्वेस्ट मैं आप सबसे ज़रूर करूँगी, अगर सत्संग आपके पास आ रहे हैं तो ज़रूर सुनिएगा। मैं समझ सकती हूँ बहुत डर लग जाता है, जैसे अगर हम दूर हैं अपने माता पिता से और इस कदर की जब पंच लाइन टैग लाइन आते हैं तो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं हम, क्योंकि मेरा तो हाल ये है कि अगर मिलने भी जाना हो तो पहुंचने में बहुत वक्त लगता है, पर मुझे पता है हम सबका मालिक एक है। गुरुजी पालनहार है, सुप्रीम पावर है, गुरुजी सदाशिव है, वो सबकी रक्षा करेंगे और वो ऐसा मौका आने ही नहीं देंगे। गुरुजी, मैं जानती हूँ आप मम्मा को ठीक रखोगे। माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी, माफ़ी चाहती हूँ संगत जी, मैं थोड़ी सी भावुक हो गई, इसलिए बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ। और मैं जानती हूँ आप मेरा शुक्राना भी स्वीकार करोगे और मेरी अरदास भी स्वीकार करोगे। गुरुजी, मैं थोड़े ही घंटों में मम्मा को फ़ोन करूँगी इंडिया। मैं जानती हूँ मम्मा फ़ोन उठाएंगे और वो बिल्कुल ठीक होंगे, बिल्कुल हेल्थ वाइज ठीक होंगे। जो भी छोटी मोटी टेंशन है, जो भी छोटे मोटे शारीरिक कष्ट है उनके ऊपर आना है वो दूर कर दीजिए गुरुजी। मेरी अरदास स्वीकार करिए। आपने मेरे बेटे के लिए भी मैसेज दिया था, उसके ऊपर भी जो भी कष्ट आने वाला है गुरुजी उसे दूर कर दीजिए और उसको आप अपनी रक्षा कवच में रखें, मम्मा को अपनी रक्षा कवच में रखें, पूरे परिवार को अपनी रक्षा कवच में रखें, पूरे संगत परिवार को अपनी रक्षा कवच में रखें। माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी, माफ़ी चाहती हूँ संगत जी, थोड़ी सी भावुक हो गई थी इसलिए बहुत 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 नतमस्तक होकर माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी, माफ़ी चाहती हूँ संगत जी।
आज का अपना मिलते हैं गुरु जी के एक और ब्लेस्ड बड़े शुक्राना सत्संग में। सोनू अंकल जी, अब तक के जितने भी सत्संग मैंने आपके चैनल पे शेयर किए, आपने बखूबी सेवा निभाई है और उसे शेयर किए हैं। चाहे मेरा गला ख़राब हो, चाहे मैं स्लो पड़ गई हूँ सत्संग शेयर करने में, चाहे सत्संग थोड़ा लंबा हो चुका हो, जो भी हो, पर आपने बखूबी सेवा निभाई, उसके लिए अनंतम आपका भी बहुत बहुत शुक्राना सोनू अंकल जी। सोनू अंकल जी, गुरु जी आपकी झोलियाँ मेहर और आशीर्वाद से भरी रखे। इतने आशीर्वाद मिले आपको सोनू अंकल जी। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जब आपकी आवाज़ सुनती हूँ तो ऐसे लगता है आप मेरे भाई हो। तो बस गुरुजी मेरे भाई की झोली सदा खुशियों से भरे रखना, उनके परिवार में अच्छी हेल्थ वेल्थ प्रॉस्पेरिटी ब्लेस कीजिएगा सोनू अंकल जी को, और मेहर भरे हाथ सदैव उन पर बनाए रखे। और गुरुजी सर्बत का भला कीजिए, सभी संगत परिवार की घर में सुख शांति समृद्धि हो, धन धान्य से उनका भरा रहे घर, और मान सम्मान से भरा रहे उनका घर, उनका जीवन मान सम्मान से भरा हो। सभी घर की गृहिणी लक्ष्मी को आप मान सम्मान दिलवाइए, उनको सुख शांति दीजिए कि घर की गृहिणी लक्ष्मी जब खुश होती है तो घर की चारे दीवार हंसती है। गुरुजी, ये मेरी अरदास ज़रूर स्वीकार करिए, आप सबके घर सुख शांति समृद्धि धन धान्य से भरे रखें, और जो भी उनके हिस्से की खुशियाँ हैं वो ज़रूर सारे संगीत परिवार को दीजिएगा गुरुजी, सबकी झोलियाँ खुशियों से भरिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरी अरदास ज़रूर स्वीकार कीजिएगा गुरुजी। फिर से मैं नतमस्तक होकर अरदास करती हूँ, मम्मा को नई लाइफ नई हेल्थ ब्लेस करिएगा। सत्संग सुनवाकर कष्ट कटवाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, और मेरे बच्चों को भी आपकी रक्षा कवच में रखिएगा, और सभी बच्चों की रक्षा कीजिएगा मेरे मालिक। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी। मिलते एक और गुरु जी के ब्लेस भरे सत्संग में। जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में अगला सत्संग समर्पित है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7914। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज मैं काफ़ी टाइम बाद अपना ये सत्संग शेयर कर रही हूँ, और ये सच में शुक्राना सत्संग है गुरु जी का। मैंने पहले अपने पुराने सत्संग में बताया था कि मेरे फादर को फूड पाइप में ट्यूमर है और उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, और उस वक्त भी मैंने गुरु जी से यही अरदास की थी कि उनकी जो रेडियोथेरेपी चल रही है वो कंप्लीट हो जाए आराम से, और वो गुरु जी की कृपा से होगी कंप्लीट, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आखिरी जो 5 रेडियो थेरेपीज़ हुई हैं वो बहुत बहुत मुश्किल से ही करवाई फादर ने, बहुत तकलीफ़ थी उनको, लेकिन गुरुजी ने ही वो कंप्लीट करवाई है। और उसके बाद तकरीबन 1 सवा महीना उनके जैसे सिर्फ 1 चम्मच, कभी बहुत कम लिक्विड कभी ले लिया, जा ही नहीं रहा था। शरीर में बहुत ज़्यादा वीक होने लग गया था, बहुत कमज़ोरी आ रही थी, लेकिन हमें विश्वास था कि गुरुजी ठीक करेंगे। गुरुजी का ही जल कभी 2 चम्मच इस तरह से ले लिया, और अब 1.25 महीने के बाद थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि उन्होंने हल्का फुल्का सॉलिड लेना शुरू कर दिया है, जैसे 1 चपाती खानी शुरू कर दी है उन्होंने। और आगे डॉक्टर्स ने अभी सर्जरी कही है, और टेस्ट वगैरह हैं काफ़ी, और मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी वो टेस्ट भी सब ठीक करेंगे, सर्जरी भी ठीक करेंगे। ये गुरुजी की कृपा ही है कि जो इतनी जो है तकलीफ़ में भी जो है फादर जीवित हैं, सह रहे हैं। उस दर्द को सहने की क्षमता भी गुरुजी ने दी है, और विश्वास है कि गुरुजी इस बीमारी से, इस सर्जरी को भी
ठीक बिल्कुल कर देंगे, सर्जरी को बिल्कुल सक्सेसफुल कर देंगे और मेरे फ़ादर की आयु को बढ़ाएँगे। और शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना, जो अभी तक की ट्रीटमेंट वो करवाई है, वो भी गुरुजी आपने करवाई है। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी आपका। सत्संग करते हुए मुझसे जो भी गलतियाँ हुई हों बोलते हुए, उसके लिए मुझे माफ़ करना सत्संग जी, माफ़ करना सोनू अंकल जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार के बीच गुरुजी महाराज के श्री चरणों में अगला सत्संग समर्पित है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1613। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। सोनू अंकल, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ इस सत्संग को शेयर कीजिए। मैं सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का मैसेजेस मुझे एक आते रहते, लेकिन मुझे पता नहीं था पहले कि जो भी मैसेजेस आ रहे हैं हमें कनेक्ट करते हैं। लेकिन जब ये मैसेजेस 2-3 बार मेरे आगे आ गई तो मुझे लगने लगा कि ये मेरे लिए होगा। गुरुपा, आपका मैसेज ऐसा है कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है पहले, उसकी वजह से ही जो मैं आज इतनी सारे प्रॉब्लम्स फेस कर रही हूँ। हो सकता है गुरुपा, अगर मैंने कुछ भी गलती किया हो पहले की, सबके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरुपा। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी गुरुपा। लेकिन अभी इतनी सारी परेशानी है, जो मैंने गलत किया है, मेरे से जो गलती हुई है अनजाने में ही सही, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा। प्लीज़ माफ़ कीजिए गुरुपा। और जो मैं पहले की ज़िंदगी जी रही थी, इतनी खूबसूरत ज़िंदगी, वो ज़िंदगी मुझे वापस दीजिए गुरुपा। जो भी है, मैं आपसे बहुत 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 ज़्यादा प्यार करती हूँ गुरुपा आपसे, क्योंकि आप ही जो है मेरे हर परेशानी की एक आंसर दे देते हैं आप मुझे। तो इसे माफ़ कीजिए गुरुपा, प्लीज़ प्लीज़। थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरुपा। और सोनू अंकल, प्लीज़ इसे शेयर कीजिए। बस यही है मेरी रिक्वेस्ट आपसे। और ये सत्संग में यही विराम देती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरुपा। लव यू गुरुपा। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7040। आप सभी संगत परिवार के बीच गुरुजी महाराज के श्री चरणों में संगत जी का सत्संग समर्पित है। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सोनू अंकल। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ संगत जी के साथ। ये मेरा पहला या दूसरा शुक्राना सत्संग है। पहला वाला मुझे पता नहीं है कि मेरा शेयर हुआ है या नहीं हुआ है। तो मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मुझसे सत्संग शेयर करते समय कोई गलती हो जाए, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। गुरुजी आप भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं ये शुक्राना सत्संग शाम के संध्या वेले समय का है। मैं गुरुजी से अभी रिसेंटली जुड़ी हूँ, 2025 अप्रैल से। हाँ,
मतलब उससे पहले 2-3 सालों से ऐसा होता था, जैसे रील्स आती थी या कुछ भी जैसे कोई गुरुजी का मैसेज आता था, तो मैं खाली जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिख देती थी नीचे कमेंट्स में। जैसे अगर राधा कृष्ण जी का आया तो जय श्री कृष्णा, ऐसे ही श्याम बाबा जी के लिए आए या बजरंगबली के लिए आए, तो मैं नीचे ऐसे कमेंट में लिख देती थी। बट मेरे को उससे ज़्यादा कुछ नहीं पता था इतना, तो और मैं भोले बाबा को भी बहुत मानती हूँ, मैं अपना इष्ट मानती हूँ उनको। उनके मैं मंत्र जाप ज़रूर करती थी, उनकी 2 माला 3 माला मैं करती थी डेली। अब शायद भोले बाबा ने ही मुझे गुरुजी के हाथ में मेरा हाथ दिया है, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि अप्रैल का मंथ मेरा ऐसा था कि मैं बहुत अकेला महसूस करने लग गई थी। कुछ लोगों पे मुझे बड़ा ट्रस्ट था, तो मुझे बड़ा उनसे धोखा मिला या मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसी का हाथ मेरे सर पे है, वो अब मैं अकेली हो गई हूँ, मैं किससे अपनी लाइफ़ के बारे में डिस्कस करूँगी या कोई सलाह लूँगी या हेल्प लूँगी। तो वो भी मेरे को इसी तरह से जैसे कोई प्रॉब्लम होती थी, तो जैसे पूजा बताना है या कुछ करना है, तो वो ऐसा करते थे। तो मैं बहुत ट्रस्ट करती थी, मतलब उन्होंने कोई धोखा नहीं दिया, पर उनसे जुड़े हुए किसी ने मेरे को दिया धोखा, तो मुझे ऐसा लगा कि अब वो मेरे लिए कुछ नहीं करेंगे या तो मैं बहुत अकेला महसूस करने लग गई थी क्योंकि मैंने अपनी लाइफ़ में संगत जी शुरू से ही बहुत प्रॉब्लम्स देखी हैं, बहुत ज़्यादा देखी हैं। बचपन से ही जैसे मेरे फ़ादर नहीं थे, मैं अपने नाना-नानी के घर पली-बड़ी हूँ। मम्मी ने ही सब कुछ मेरे लिए करा है, तो मैं वहाँ पली-बड़ी हुई, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं महसूस होने दी। ठीक है, फिर भी बहुत सी कमियाँ होती हैं, वो सब चीज़ें तो मैं भी नहीं शेयर कर पाऊँगी। फिर उसके बाद जब मेरी मम्मी की सेकंड मैरिज हुई, उसके बाद भी मैंने बहुत चीज़ें फेस की। फिर मेरी खुद की मैरिज में भी मेरी लव मैरिज है, तो मैंने उसमें भी बहुत बहुत हर्डल्स फेस करे हैं। 2010 में मेरी मैरिज हुई थी, मेरा एक बेटा है 14 साल का। तो आप ये लगा लीजिए कि मेरा बेटा, मेरे हस्बैंड अंकल, मेरी मम्मी, यही लोग मेरी लाइफ़ हैं, जो अब तक मुझे सँभाले हुए हैं। वरना मैं तो बीच में बहुत टूटी हूँ। लोगों ने भी मेरे पे मतलब मैंने बहुत विश्वास किया, लोगों ने मेरा बहुत विश्वास तोड़ा है। मैं आपको बता नहीं सकती, शादी होती है 1-2 साल में ही मेरे पे इतना धीरे-धीरे कर्ज़ा होता गया, मुझे नहीं पता था कि ब्लैक मैजिक कुछ होता है या लोग कुछ करते हैं किसी पे या रिलेटिव्स में कोई ऐसा कर सकता है या अननोन में भी जैसे नोन्स में भी कोई होते हैं, चाहे वो रिलेटिव्स ना हो, थोड़ा आस-पड़ोस में मुझे ये सब चीज़ें नहीं पता थी। कोई कहता भी था तो मैं विश्वास नहीं करती थी, मैं सोचती थी नहीं, या तो कर्मा है हमारी या फिर ऐसे ही हो रहा होगा, प्रॉब्लम हो रही होगी कि नोटबंदी आई है या लॉकडाउन आया है। लेकिन मैंने उसके बाद धीरे-धीरे नोटिस करना शुरू करा कि 2018 के बाद से कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं, मतलब मैं उस चीज़ को समझ नहीं पा रही हूँ कि ये सब कुछ होता है, करना, कराना ये सब कुछ होता है। ये चीज़ें हुई हैं। कौन है, क्या है, ये सब मुझे नहीं पता। उस समय तक तो नहीं पता था, अब जैसे पता भी है, तो मैंने तो सब गुरुजी पे ही छोड़ा हुआ है और वो ही सब ठीक कर रहे हैं और कर भी चुके होंगे और कर भी रहे हैं, मुझे पता है गुरुजी सब कुछ। लेकिन मुझे बिलीव नहीं होता था क्योंकि मैं आपको सच बताऊँ संगत जी, मैं अब खुद कमाती थी, दुकान चलाती थी, मैं शादियों की पैकिंग वगैरह का काम करती थी। मैंने कभी किसी से कुछ कहा नहीं। मेरे पे कर्ज़ा चढ़ता गया, मैं ब्याज भी इधर से लिया, उधर से माँगा। मतलब मैं लड्डू गोपाल जी को बहुत मानती हूँ, अपने घर में उनकी सेवा करती हूँ। जो मेरे बस से हो पाता है, काफ़ी कुछ तो नहीं कर पाती हूँ, लेकिन जितना भी हो पाता है, तो मेरी तो शायद गाड़ी उन्हीं के भरोसे या माता रानी के भरोसे ही चल रही थी और अब तक भी चल रही थी। अगर मैं पिछला अपना सब कुछ याद करूँ, तो महीने में 3-3, 4-4, 5-5 लाख रुपए ब्याज भरना, मतलब मेरी तो अर्निंग ही नहीं थी। मुझे ऐसा लगता था मेरी तो 20, 25, 30 हज़ार की भी अर्निंग नहीं है। तो इतना पैसा मैं कैसे दे रही हूँ? मेरे हस्बैंड के पास भी जॉब नहीं थी उस समय पे, उन्होंने भी बहुत लापरवाहियाँ करी हैं, लेकिन कुछ उनके साथ भी गलत हो ही रखा होगा, जो हमारी लाइफ़ ऐसी हो गई। मतलब बहुत परेशानियाँ, मेरे बेटे ने भी छोटी-छोटी चीज़ों के लिए, अगर हमारे घर में सब्ज़ी नहीं है, कुछ भी खरीदना है, 20-30 रुपए नहीं है, मतलब बहुत मैंने ऐसे बहुत सारे चीज़ें देखी हैं, फेस करी हैं और अब तक कर रही थी और बहुत लोग मुझे परेशान करते थे, घर में दरवाज़ा बंद करके बैठ जाना अंदर, कि किसी को पता ना चले कि मैं अंदर बैठी हूँ। मतलब मैंने बहुत कुछ फेस करा है, मेरे बेटा बहुत समझदार है, मेरे को बहुत सपोर्ट करता है वो, शायद उम्र से पहले ही समझदार हो गया है। मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा होए, तो बट ठीक है, वो मुझे समझता है और उसी की ही वजह से गुरुजी का स्वरूप हमारे घर में आया है, उसी की ज़िद की वजह से, क्योंकि वो पहले मंदिर जाना चाहता था, वो गया मेरी मम्मी के साथ, मेरे हस्बैंड अंकल के साथ, मई के मंथ में और फिर उसके बाद दोबारा गए तो वो गुरुजी का स्वरूप लेकर आया, गुरुजी आए, एक अलग सी शांति सी आ गई है घर में। मतलब अब लगता है कि
मेरे ससुर भी नहीं है, मैं आपको सच बताऊँ, मेरे फादर नहीं हैं। मेरे हस्बैंड भी कई बार अपने फादर को याद करके रोते हैं अकेले में, हमें नहीं बताते हैं। आज भी बहुत मुश्किलें फेस करनी पड़ती हैं, बट कुछ ना कुछ बदल गया है, कुछ तो बदल गया है। पहले ही दिन से मुझे चमत्कार महसूस होने लगे थे, तब तक तो मैंने शायद इतने सत्संग ही नहीं सुने थे कि सत्संग से पता चला कि ऐसा-ऐसा चमत्कार होता है, ये गुरु जी की महिमा है। मैं जब ये लोग तो गुरु जी के दरबार गए थे मंदिर में, बड़े मंदिर, तो मैं तो अपने घर पे थी, मैं जा नहीं सकती थी, मेरा वेट बहुत ज़्यादा है संगत जी। मैं घर से बाहर नहीं निकलती हूँ 6-6 महीने, 8-8 महीने। कहीं जाना हो तो डायरेक्ट वहाँ जाके वापस आ जाती हूँ। कुछ वेट पुट ऑन होता गया, टेंशनों में भी कुछ प्रॉब्लम्स भी हो गई थी, हेल्थ इश्यूज़। मतलब बहुत चीज़ें फेस कर ली मैंने, तो मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी, फिज़िकली हो गई, फाइनेंशियली भी चल रही थी और सपोर्ट किसी का नहीं था, ना मायके से, ना ससुराल से कोई सपोर्ट नहीं है। तो मेरे लिए बहुत मुश्किलें बढ़ गई थी। मैं ये नहीं कह रही बस हाँ, मेरी मम्मा ही हैं जो मेरे लिए मेरी चिंता करती हैं, मेरे हस्बैंड है, मेरा बेटा है। बट संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती, मतलब बहुत चीज़ें ऐसी जो मैं इस समय बता ही नहीं पाऊँगी, मतलब क्योंकि मैं लिख के नहीं बोल रही हूँ, बट मैं कई दिनों से शेयर करना चाह रही थी, पर मैं सोच रही थी, मैं सबके सत्संग सुनती थी कि अच्छा ये वर्ड बोल दूँगी, ऐसा बोल दूँगी, ऐसा बोलना होगा संगत बीच में, जय गुरु जी बोलना है, संगत जी को थैंक यू करना है। सारी चीज़ें नोटिस करती थी और करना भी चाहिए, पर समझते-समझते, करते-करते थोड़ा वक़्त लग जाता है। तो मुझे लगा जब मैं प्रिपेयर्ड होंगी, गुरुजी मुझे खुद आदेश दे देंगे, और मैं सच बताऊँ, आज इस समय जब मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ, तो मेरा बेटा और मेरी मम्मी इस समय बड़े गुरुजी के बड़े मंदिर ही जा रहे हैं, मतलब वो लोग रास्ते में हैं और मैं अकेली हूँ घर में, तो गुरुजी ने बोला कि इस समय तू अकेली है, तो इस समय कर, तू शुक्राना सत्संग टाइप तो कर। मैं 2-3 दिन पहले भी 3-4 बारी किसी चैनल पे ट्राई कर रही थी, पर वो वॉइस रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा था, पता नहीं। मैं सेंड करती थी तो वॉइस रिकॉर्ड नहीं होता था। आज भी मैंने जब शुरू करा तो हाँ, अब रिकॉर्ड हो रहा है। शायद मेरा सत्संग भी थोड़ा-सा बड़ा हो रहा है। बट संगत जी सच में मैं गुरुजी का रोज़ शुकराना करती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ जब गुरुजी ने कई सत्संग के द्वारा मुझे बताया कि शुकराना सत्संग शेयर करना है, संगत जी के साथ शेयर करना है, उससे शायद गुरुजी का शुकराना मैं ढंग से कर पाऊँ। और संगत जी बहुत सारी चीज़ें जो मैं अभी बता नहीं पा रही हूँ, बट अभी कुछ दिन पहले ही मेरे हस्बैंड अंकल को गाय ने सींग मारा था। उस दिन ही मैंने शुकराना सत्संग शेयर करा था, मुझे नहीं पता वो शेयर हुआ या नहीं हुआ। पर मैंने उसी दिन एक सत्संग सुना था जिसमें था कि बहुत बड़ा कष्ट तेरे हस्बैंड अंकल पे आने वाला है, इस चीज़ को फटाफट सुन, मृत्यु का कुछ ऐसा था। तो मैं बहुत डर गई थी, 3 साढ़े 3 बज रहे थे दोपहर के। मैंने वो सत्संग सुना, आधा पौन घंटे का था और उसके मुझे रात को पता चला कि 5-6 बजे ही गाय ने उनको सींग मारा, उनके काफ़ी बड़ा नीर पड़ गया था, लेकिन उनको तकलीफ़ उतनी नहीं पहुँची। तो गुरुजी का बहुत-बहुत शुकराना है, मैं तो उस दिन से रोज़ गुरुजी का शुकराना कर रही हूँ, वहाँ चंदन टीका लगा रही हूँ, जल प्रसाद लगा रही हूँ कि ये ठीक हो जाएँ और ठीक हो रहे हैं और हो भी गए हैं। और ऐसी कुछ चीज़ें मेरे बेटे को लेकर भी हुई, कुछ चीज़ें थी कि झूठे लोग फँसा देंगे, झूठा एग्ज़ाम, तो इससे रिलेटेड भी हो, तो मैं हैरान हो गई कि अभी जो हुआ और गुरुजी ने मुझे वो सत्संग सुनवाया, तो अगले दिन जब वो चीज़ सामने आती है, उस समय हमें नहीं पता चलता है क्योंकि वो चीज़ ऑलरेडी गुरुजी ने कश काट के उसको इतना छोटा बना दिया होता है, उस कश को काट के उस प्रॉब्लम को इतना छोटा कर दिया है कि हमें महसूस ही नहीं होता। पर बाद में खाली वक़्त जब मैं गुरुजी के सामने बैठती हूँ या अकेले में बैठती हूँ, तब मुझे लगता है अरे! ये तो वैसा कुछ बड़ा होने वाला था मतलब। लेकिन मैंने वो सत्संग सुन लिया, तो वो कश कट के इतना छोटा हो गया कि मुझे पता ही नहीं चला कि ये वो इंसिडेंट उससे रिलेटेड है। तो मेरे को तो ख़ैर पहले ही दूसरे दिन से इस चमत्कार के बारे में पता चलने लग गया था। जब फर्स्ट टाइम मेरा बेटा दरबार गया था गुरुजी के, तो अंदर वीडियो कॉल अलाउड नहीं कर रहे थे, वहाँ जो सेवादार अंकल थे वो वीडियो अलाउड नहीं कर रहे थे, तो बेटे ने बोला मम्मी मैं आके दरबार नहीं दिखा पाऊँगा आपको। मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं सो ही रही हूँ, 12:30 बज रहे थे, मैं सो गई। सोमवार का दिन था, मई के मंथ में। मैं जो 40 मिनट सोई हूँ, उसके बाद जो मेरा बेटा बाहर आया है, उसने फ़ोन करा तो मेरी नींद टूटी। तो वो मुझे बोला मम्मी हम हो आए। तो मैंने कहा हाँ, मैं भी हो आई। बोला कैसे? आप मानोगे नहीं संगत जी, मेरे सपने में खुद गुरुजी ने पूरा दरबार मुझे दिखाया और वहाँ जो संगत थी, जो सेवादार जी थे, उन्होंने मुझे अंदर जाने के लिए बोला। उन्होंने बोला आप वहाँ जाना है, पर गुरुजी के मंदिर में ना सोफ़ा नहीं होते हैं। मेरे बेटे ने मुझे बताया मम्मी वहाँ सोफ़े तो बैठने का तो कोई सिस्टम नहीं है, वहाँ तो चलने का सिस्टम है। लेकिन संगत जी आप देखो गुरुजी की महिमा, मेरा वेट बहुत ज़्यादा संगत जी, मैं शेयर नहीं कर सकती हूँ। बहुत ओवर वेट हूँ मैं और मैं जल्दी से कहीं नहीं जाती हूँ। मुझे कइयों ने बोला कि बड़े मंदिर चले जाओ, अगर चलने में दिक्कत है तो वहाँ व्हील चेयर्स होती हैं। पर संगत जी मुझे पता है कि मैं शायद व्हील चेयर में भी फिट नहीं आऊँगी। मेरा वेट बहुत ज़्यादा है संगत जी। मैंने गुरुजी से ये रिक्वेस्ट करी है कि आप मेरा शरीर, मेरा स्वास्थ्य अच्छा कर दीजिए।
कि मैं अपने बेटे के साथ, अपनी मम्मा के साथ, अपने हस्बैंड अंकल के साथ आपके मंदिर आऊँ। और मैं सच में आना चाहती हूँ और सिर्फ़ दिल्ली में बहुत सारी जगह जाना चाहती हूँ। मैं बहुत जगह जाना चाहती हूँ अपने बेटे के साथ। संगत जी, मेरा बेटा लिटरली तरसता है कि मम्मा आप मेरे साथ कब चलोगे? आप मेरे को कब मॉल घुमाने ले जाओगे? औरों की मम्मा भी तो बैडमिंटन खेलती हैं, वॉक पे जाती हैं, आप घर में ही रहते हो। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो अपनी ज़िंदगी नहीं जी पा रही हूँ इस समय घर में रह के, पर मेरा बेटा भी जो कुछ मुझसे चाहता है, मैं उसे नहीं दे पा रही हूँ। अगर मेरा शरीर स्वस्थ रहे, मुझे नहीं पता किस वजह से ऐसा होता गया, वेट पुट ऑन होता गया। मेरे को बार-बार पैरों पे चोट लग जाती थी, फ्रैक्चर हुआ, तो मैं कुछ कर ही नहीं पाती थी। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बीमार होने लगी, तो वेट पुट ऑन हो गया। मैं संगत जी आपको बता नहीं सकती हूँ, मैं कई बार अकेले में बहुत रोती हूँ। कुछ मेरी भी कमी है, मैं जब भी कुछ करने की सोचती हूँ, नहीं कर पाती हूँ। ऐसा लगता है जैसे कोई चीज़ ने रोक दिया है, कुछ नहीं हो रहा है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, मेरी मम्मा मेरी वजह से बहुत परेशान रहती हैं। मैं उनके लिए कुछ कर नहीं पाई हूँ, उन्होंने तो एक तरह से अपनी पूरी लाइफ़ ही मेरे लिए सैक्रिफ़ाइस की है हर जगह, और मैं 1% भी उसका नहीं उनको लौटा पाई हूँ, जो बच्चों को देना चाहिए, क्योंकि मैं उनकी एक मतलब ओनली डॉटर हूँ। तो इस वजह से अब जैसे उनकी सेकंड मैरिज हो रखी है, तो जो फ़ादर हैं मेरे, तो उनके बच्चे हैं, तो इतना कुछ ख़ास नहीं है सब कुछ, बट स्टिल मतलब मुझे लगता है कि मुझे तो बहुत कुछ करना है। मुझे नहीं पता इस जन्म में तो मैं कर भी पाऊँगी, नहीं कर पाऊँगी, पर गुरु महाराज जी से तो यही मेरी प्रार्थना है कि प्लीज़, मैं करना चाहती हूँ उनके लिए कुछ, सबके लिए करना चाहती हूँ, अपने बच्चों के लिए। और जो मेरे पे इतना कर्ज़ा चढ़ा है, मैं गुरु जी महाराज जी से ये कहती हूँ कि आप देखिए, मैं रोज़ ही सोचती हूँ कि हमें गुरु महाराज जी से अपनी बातें करनी चाहिए, उनका हाल-चाल पूछना चाहिए। मैं उस दिन से गुरु जी महाराज जी का रोज़ हाल-चाल पूछती हूँ। पहले यही कोशिश करती हूँ कि मैं उनकी वो खुश रहें। वो हमारे लिए इतना कष्ट उठाते हैं, मैं सुनती हूँ सत्संग में सब बताते हैं, और कितने सारे कष्ट वो लेते हैं, मतलब बहुत चीज़ें हैं संगत जी। पर मैं खुद नहीं चाहती कि मैं रोज़ गुरुजी के आगे सिर्फ़ अपने लिए माँगने के लिए बैठूँ। बट बहुत ज़रूरी हो गया, मैं उनसे कहती हूँ गुरुजी माफ़ करना, पर बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि अगर ये चीज़ें ठीक हो जाएँगी तो मैं शायद आपके साथ ज़्यादा वक़्त बिता पाऊँगी। मुझे तो खुद नहीं अच्छा लगता, या फिर मैं माँगू ही नहीं, सिर्फ़ बैठ जाऊँगी। जो गुरुजी को देना होगा वो अपने आप देंगे। और आप मानोगी नहीं, मतलब मैं घर के बाहर नहीं जाती हूँ। एक दिन सत्संग आया, गुरुजी ने बोला कि मैं बेटा तुझे दर्शन दूँगा। पर मुझे लगा गुरुजी मैं तो बाहर जाती ही नहीं हूँ, आप मुझे कैसे दोगे बटरफ्लाई रूप में दर्शन या किसी भी चीज़ के रूप में दर्शन? आप मेरे घर के आस-पास तो कोई बटरफ्लाई कभी आती ही नहीं है। मेन रोड पे घर है, कभी नहीं आती है। बट चमत्कार देखिए, मेरा बेटा गया था थर्सडे को, एक बार अभी हो गई इस बात को 2-3 हफ्ता, 1 महीना। तो वो मंदिर से मैंने उसको ज़बरदस्ती 12:30 बजे बोला पट बंद हो जाएँगे, जा बेटा केले के पेड़ पे जल चढ़ाया, प्लीज़ चला जा, मैं नहीं जा पाती हूँ। तो वो चला गया। वो वहाँ से वापस आ रहा था तो अंदर आके बोला मम्मी बाहर बटरफ्लाई है। मैंने कहा नहीं, नहीं हमारे घर के बाहर नहीं हो सकती। बोला है तो मैंने कहा वीडियो बना के ला। उसने वीडियो बनाई, तितली उड़ रही थी ब्लैक कलर की एंड ब्लू कलर था बीच में। तो मैंने कहा अरे वाह! ये तो बहुत अच्छे हैं, चलो मेरे भी दर्शन हो गए। फिर मैंने कहा अच्छा चल ठीक है जा तू। तो एक 1 सेकंड के लिए ऐसा लगा जैसे गुरुजी मेरी मम्मी बोले मैं तेरे से मिलने के लिए तेरे घर के बाहर तक आ गया हूँ और तू बाहर दरवाज़े तक नहीं आ सकती है। क्योंकि मैं संगत जी आपको सच बताऊँ, मैं अपने बाहर बाहर जो गैलरी है, मैं उसमें भी नहीं जाती हूँ, पटरी पे भी नहीं जाती हूँ। 6-6 महीने में जब कभी बाहर जो पटरियाँ बनी होती है घर के बाहर, उसपे जाती हूँ तो मैं आसमान देख के सोचती हूँ अच्छा आज मैंने आसमान देखा है। आप लोगों को भी लग रहा होगा कि ये कैसी बातें कर रही है, पर सच में संगत जी मुझे खुद नहीं समझ में आता ये सब क्यों हो रहा है। बट मैं जब वहाँ गई, वहाँ पे गुरु महाराज जी के रूप में मैंने जो तिथि के दर्शन करे, गुरु महाराज ने अपनी प्रेज़ेंस फ़ील कराई मुझे, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आज ही मैंने एक सत्संग सुना था जिसमें उन्होंने कहा था कि अमीर लोग तो गुरुजी के पास जाते हैं और गुरुजी गरीबों के पास जाते हैं, या उनके पास जो उन तक आ नहीं पाते। तो संगत जी सच में मैं उन्हीं में से शायद एक हूँ जो वहाँ तक नहीं पहुँच पाई है, पर वाक़ई में संगत जी गुरुजी मेरे तक आ गए। गुरुजी मेरे तक आ गए हैं। अब मैंने तो गुरुजी से यही प्रार्थना करनी है, गुरुजी, गुरु महाराज जो भी मेरे घर में नज़र लगी हुई है या मुझ पे लगी हुई है, मैं कई सत्संग सुनती हूँ, लेकिन मैं ना चल नहीं पाती जी, मतलब मैं चलती हूँ, मेरी बैक पेन होती है, कुछ मेरा शायद आलस है, डर है, मोटापा है कि कुछ चीज़ें हैं कि लोटा लेके ऐसे घर में घूमना है या नींबू लेके घूमना है, ऐसे करना है। मैं आलस कर जाती हूँ, मैं सोचती हूँ मेरे हस्बैंड कर दें मेरे बदले में, मेरा बेटा कर दे। मैं आलस कर जाती हूँ, मोटापे से भी हार जाती हूँ, थक जाती हूँ बहुत जल्दी। तो मैंने गुरु महाराज जी से ये अरदास लगाई, गुरु जी आप ही आओ ना,
गुरु जी आप आए हो, आप ही नज़र उतार दो, आप ही प्लीज़ सब कुछ कर दो। यार मेरे को इतनी हिम्मत दे दो गुरु महाराज कि मैं कर सकूँ, और गुरु जी हिम्मत दे रहे हैं। मैं आपको सच बताऊँ, मुझे महसूस हो रहे हैं अपने अंदर चेंजेस। जो मैं जल प्रसाद पीती हूँ, तो मुझे लग रहा है 19-20, पर हाँ, कहते हैं ना बाल्टी में से आप एक बूँद या एक कटोरी पानी निकालोगे तो नहीं पता चलेगा। मैं महसूस कर रही हूँ अपने हेल्थ में चेंजेस, और मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ से। घर की परेशानियाँ हैं, दिख रही हैं, सब कुछ पता चल रहा है। लेकिन जब गुरुजी की याद आती है या गुरुजी सामने दिखते हैं, ख़ैर याद क्या आती है, गुरुजी तो हर वक़्त हर पल, चाहे मैं टीवी देखूँ, चाहे मैं सच बोलूँ, अपने हस्बैंड के साथ अगर ताश भी खेलती हूँ ना, कार्ड्स, तो मैं तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी और गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। मेरे हस्बैंड कहते हैं, "तू ऐसा क्या करती है जो तू हमेशा जीत जाती है?" तो मैंने बोला कि तुम भी कर लो गुरुजी का मंत्र जाप, तुम भी जय गुरुजी बोलो। तो मैं आपको संगत जी सच बताऊँ, मेरी लाइफ़ बदल रही है, सब कुछ ठीक हो रहा है, मुझे पता है। जलने वाले जलते रहें, नज़र लगाने वाले लगा रहे, गुरुजी उनको देखेंगे, सबक सिखाएँगे, मेरा काम भी गुरुजी ही चालू करेंगे, शुरू करेंगे। मेरी आमदनी चारों तरफ से, ताकि मैं घर के खर्चे भी पूरे कर सकूँ और मैं गुरुजी के साथ अपना वक़्त बिताऊँ। मैंने गुरुजी को बोला है, क्योंकि गुरुजी को तो सब पता होता है ना। मेरा मन बोला कि गुरुजी को तो सब पता होता है, शायद तू अगर इतनी परेशान नहीं रहती तो तू गुरुजी के पास नहीं बैठती, या शायद तेरे पे सब कुछ आ जाएगा तो तू बाद में नहीं बैठेगी। तो मैंने तब भी गुरुजी महाराज जी को ये बोला कि गुरुजी अगर ऐसा आपको कुछ भी पता चल रहा है, तो वो भी तो आप ही ठीक कर सकते हैं ना, कि मैं आपके साथ बैठूँ। आप मेरे अंदर कभी भी कोई, आप मेरे को चीज़ देते हैं, कुछ देते हैं, आप, मैंने हमेशा से नीयत साफ़ रखी है। तो मैं गुरुजी महाराज से यही बोला कि गुरुजी आप ऐसा बनाना मेरे मन को कि मेरा मन आपकी तरफ रहे तब भी। ठीक है, मेरा घर ठीक रहे, पर मेरा मन आपकी तरफ भी रहे। मैं आपके साथ वक़्त बिताऊँ। आप मुझे ऐसा बनने ही मत देना कि किसी के पास पैसा आता है तो लोग सोचते हैं मैं पार्टीज़ करूँ, बाहर घूमूँ। ठीक है, मैं अपने बेटे के साथ जाना चाहती हूँ, लेकिन मैं अपना मन अगर मेरे बेटे की तरफ है, तो मैं आपकी तरफ भी गुरुजी उतना ही मन रखना चाहती हूँ। ऐसा आप मुझे बनाइएगा गुरु महाराज जी। संगत जी, मुझसे कोई भी गलती हो गई हो सत्संग शेयर करते वक़्त, मुझे प्लीज़ आप सब माफ़ कर दीजिएगा, प्लीज़ माफ़ कर देना गुरु महाराज जी। ऐसा नहीं है कि मैंने सत्संग सुना है तो मैं उस चीज़ को कॉपी करके नहीं बोल रही हूँ, इसलिए मैं इतने दिन से शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी। अब जब मेरा मन पक्का हुआ, मैंने इन चीज़ों को फ़ील करा, महसूस करा कि हाँ, ये चीज़ मैं दिल से माँगती हूँ कि हम जो माफ़ी माँग रहे हैं, वो हम दिल से माँग रहे हैं। या हम कोई शुक्राना सत्संग शेयर कर रहे हैं, तो उसमें सारे वर्ड्स जो मैं फ़ील करती आई हूँ, मुझे ये शुक्राना करना है, अब ये हुआ शुक्राना करना है, बहुत सारे शुक्राने हैं, पर मैं उनको कर नहीं पाती थी। बैठती थी तो या तो वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पाता था, या भूल जाती थी, या कोई बैठा होता था हर वक़्त, तो मैं नहीं कर पाती थी। लेकिन आज तो गुरु महाराज जी ने मेरे मन में अंदर से बोला है। बाकी सोनू अंकल जी, गुरु महाराज जी आपको भी खूब ब्लेसिंग्स दें, सारे संगत को ब्लेसिंग्स दें, पर प्लीज़ आप मेरा ये शुक्राना सत्संग ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे नहीं पता शेयर होगा नहीं होगा, पर सच में गुरुजी ने मुझे बोला कि तू शुक्राना सत्संग शेयर कर और शुक्राना कर। इस समय अपना शुक्राना सत्संग ऑडियो टाइप रिकॉर्ड करके भेज। तो सोनू अंकल प्लीज़ आप शेयर करना, और आपको खूब खूब ब्लेसिंग्स मिले। सबको, जो भी आपसे लोग जुड़े हुए हैं, सबको खूब ब्लेसिंग्स मिले। सारी संगत को ब्लेसिंग्स मिले। जो लोग इसको सुनकर जय गुरुजी लिखे, या मन में ही कुछ भी अगर उनके मन में मेरे बोले शब्द अगर उनकी लाइफ से कहीं जुड़े हुए हैं और उनको इससे हिम्मत मिलती है, सबको ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले, ढेर सारी। संगत जी, एंड थैंक यू मुझे खुद से जोड़ने के लिए। और बस गुरु महाराज जी, मुझे कभी आप अपने से दूर मत करना, ना मुझे, ना मेरे बेटे को, ना पति अंकल को, ना मेरी मम्मा को, और किसी भी संगत को आप खुद से दूर मत करना गुरु जी, कभी दूर मत करना। सच में मेरे को, मैं ये नहीं कह रही हूँ मुझे मटेरियलाइज़ चीज़ें चाहिए, नहीं चाहिए, बट जो ज़रूरी है वो सब आपको पता है गुरु जी, और बहुत सी चीज़ें जो आप सब जानते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सबका बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4540। आप सभी संगत परिवार के बीच गुरु जी महाराज के श्री चरणों में संगत जी का सत्संग समर्पित है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। हर उस पल का शुक्राना जो आपने मेरे लिए ब्लेस कर रखा है। गुरुजी, आपने इतना सब कुछ दिया है, खुशी दी है, अच्छा स्वास्थ्य दिया है, अच्छा खाने पीने को दिया है। उन सब चीज़ों का हम कितना भी शुक्राना करें कम है गुरुजी। आप बहुत सारी बातें बिना कहे बिना बताए कर देते हैं पूरी, उन सब के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैंने आपसे एक अरदास रखी थी जब मेरे यहाँ मेहमान आए थे, बेटी आई थी, कि हमारे यहाँ बारिश में पानी भर जाता है, आप प्लीज़ बारिश इतनी मत कर दें होने देना ज्योति नगर में कि पानी भरे। 1 महीना हो गया गुरुजी, आपने मेरी अरदास को पूरा रखा। आगे भी इसी तरह करते रहना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। हमारे घर में बहुत पानी बढ़ता है तो दिक्कत होती है नीचा होने की वजह से। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हल्की हल्की बारिश में निकाला आपने। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मेरा स्वास्थ्य ठीक रखा, बच्चों का आना जाना ठीक रखा, सब खुशी से रहे, सब में मन में अच्छे से भावना रही, सब भावना से रहे, सब साथ मिल के। किसी का कोई मनमुटाव, कोई क्लेश कुछ नहीं हुआ, सब कुछ बढ़िया से रहा। सब आपका शुक्राना है गुरुजी। आपने ही इसको ब्लेस कर रखा है, नेगेटिविटी से दूर रखा, क्लेशों से दूर रखा, सब से दूर रखा। अब बहुत ब्लेस करते हैं गुरुजी। आपने मुझे बहुत अच्छा स्वास्थ्य दे रखा है, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। अब सब आपके मेहर से इच्छा कर सकती हूँ। बस गुरुजी मुझे अपने दर्शन देते रहा करो। मेरी यही इच्छा है कि आपके मैं साक्षात दर्शन कर पाऊँ, मेरे घर शहद वर्षा हो पाए, मुझे आपके हाथ से प्रसाद मिल जाए। इतने अरमान है गुरुजी, मरने से पहले ये 3 अरमान पूरे कर देना। जब मैं मरूँ, मेरा आखिरी सांस आए, मेरे होठों पे आपका नाम आए गुरुजी। गुरुजी मुझे हाथ पकड़ के खींच लेना गुरुजी, अपने चरणों में जगह दे देना गुरुजी। बस यही अरदास और है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अपना आप मेरे अपने परिवार को संभालना आपकी जिम्मेदारी है। जय गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सब कुछ शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। सर्वदा भला करना गुरुजी। सब संगत को वो देना जो उन्हें चाहिए, सबके दिन अच्छे रखना, सबको भक्ति में लगाना। आपके मंत्र जाप में इतनी भक्ति है, इतनी शक्ति है गुरुजी कि कह नहीं सकते। मंत्र जाप जपते ही मन के क्लेश, द्वेष, लड़ाई झगड़े सब दूर हो जाते हैं, जो इच्छा हो वो पूरी हो जाती है। आपने बहुत जनों को भक्ति में लगाया है, अपनी भक्ति में लगाया गुरुजी। इसी तरह मुझे अपनी भक्ति में रखना, अपने चरणों में लगाए रखना गुरुजी, और मेरे मन की भक्ति बढ़े। अपने आप को मुझे सौंप दो गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। कोटि कोटि शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। आप बहुत अच्छे अच्छे मैसेज दे रहे हो आजकल, पढ़कर मन अच्छा खुश हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। शेष फिर। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, 6021 व्हाट्सएप के लास्ट 4 डिजिट्स हैं। संगत जी का सत्संग आप सभी संगत परिवार के बीच गुरु जी महाराज के श्री चरणों में समर्पित है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, यह मेरा शुक्राना सत्संग है और मैं सोनू अंकल के प्लेटफॉर्म पर, उनके चैनल पे ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। और सोनू अंकल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना कि आप बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। परमात्मा आपकी भी हर इच्छा पूरी करे एंड थैंक यू सो मच। संगत जी, मैं वर्किंग वुमेन हूँ और मैं स्कूल में जाती हूँ और यहाँ पे आपको पता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिटिक्स और कोई ना कोई ऐसे लोग होते हैं कि जो आपको पुल डाउन करते हैं, और स्पेशली जब आप एक अच्छा और अपना नेक दिल से, डेडिकेशन से, ऑनेस्टी से काम करते हो तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो संगत जी, मेरे जहाँ पे मैं बैठती हूँ फ़ैन नहीं है और इतनी गर्मी में फ़ैन
और एसी तो है ही नहीं है और फ़ैन भी वर्क नहीं कर रहा था, काफ़ी देर हो चुकी थी। बट अब बोला मैंने सबको कि फ़ैन ठीक कर दो, किसी ने नहीं किया। 3-4 बार बोला मैंने बट किसी ने ठीक नहीं किया और नए फ़ैन्स हैं पर किसी ने दिया नहीं। तो मैंने गुरुजी से कल रात को सोते हुए प्रेयर की, गुरुजी मैं तभी जाऊँगी ऑफ़िस अगर कुछ ना कुछ उसका इंतज़ाम हो जाएगा, नहीं तो मेरे लिए तो ऐसे बैठना बड़ा मुश्किल है गर्मी में गुरुपा। तो आप मानेंगे नहीं संगत जी, मैं सुबह आई हूँ और अभी का सत्संग कर रही हूँ और मैंने एक ऑफ़िस बॉय को फ़ोन किया कि ऐसे-ऐसे फ़ैन है, तो उसने बोला मैम आप चिंता ना करो मैं किसी को भेजता हूँ। नहीं ऐसा होता नहीं है कि आपको पता है ऑफ़िसेज़ में कौन सुनता है। तो उसने किसी को भेजा इलेक्ट्रीशियन को और वो इलेक्ट्रीशियन आया तो वो उसने बोला कि मैम ये फ़ैन तो लेके जाना पड़ेगा, ये तो ठीक नहीं है। तो मैंने कहा भैया मैं कैसे बैठूँगी, इतनी गर्मी में तो काम करना भी बड़ा मुश्किल है। तो ही सेड कि मैम आप रुको मैं ना दूसरा फ़ैन लगा देता हूँ, तो आप उस फ़ैन में बैठ जाओ। मैंने कहा पर इश्यू करना ये वो कैसे होगा ये सब? कहता है आप छोड़ो और संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे विदिन 10 मिनट्स वो इलेक्ट्रीशियन आया और वो मेरे फ़ैन लगाकर चला भी गया और जो मेरा फ़ैन ख़राब है वो कहता कि मैं इसको मैम आफ्टर 2 ले जाऊँगा और इसको भी ठीक करवा दूँगा। संगत जी ये कौन कर सकता है? ये सिर्फ़ गुरुपा और गुरुपा कर सकते हैं। गुरुपा अपनी संगत की छोटी से छोटी ख़्वाहिश भी पूरी करते हैं, छोटी से छोटी चीज़ को भी पूरा करते हैं। बस एक फ़ेथ रखिए गुरुपा पे। थोड़ा अगर हमारे साथ गलत भी होता है बस ये सोचिए कि उसमें पता नहीं गुरुपा ने क्या भलाई करनी है। तो थैंक यू गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, बहुत शुक्राना गुरुपा। आपके होते हमें किसी बात की चिंता नहीं है गुरुपा। बस एक ही प्रार्थना करूँगी गुरुपा सभी बच्चों पे, सभी परिवारों पे अपना हाथ बनाए रखना गुरुपा और अगर संकट भी आते हैं तो गुरुपा हमें शक्ति देना कि हम उनको काट सकें गुरुपा। आप हमारे कर्म तो काट ही देते हैं पर 1% भी काटना हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है गुरुपा। हमारे को शक्ति देना, हमारा हाथ संभाल कर हम हमारे हाथ पकड़ के हमारे वो भी कष्ट काटना गुरुपा। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4445। आप सभी संगत परिवार के बीच गुरुजी महाराज के श्री चरणों में संगत जी का सत्संग समर्पित है। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं गुरुजी की बेटी इंदिरापुरम से बोल रही हूँ। आज शनिवार के दिन मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, गुरुजी की आज्ञा होगी तो ये शुक्राना सत्संग आप तक ज़रूर पहुँचेगा। गुरुजी के महामन से मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी 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 की बड़ाई में जितना बोलूं संगत जी कम है। गुरुजी मेरे अंग संग हमेशा रहते हैं। अभी मैंने 2 दिन पहले एक सत्संग शेयर किया था जिसमें मेरी बहन की सासू माँ आंटी सुधा आंटी बहुत बीमार थी, वो आईसीयू में थी, बट अब वो स्टेबल हैं। गुरुपा की कृपा से गुरुपा उनके अंग संग है और मैंने उनको बोला है गुरुपा जब भी आप उनको लेके आओ उनको ठीक करके और प्योर सोल्ट बना के लाओ। मेरी बहन आंटी से मेरी बात हो रही है, सुधा आंटी बिल्कुल ठीक है संगत जी, और ये सब गुरुजी की कृपा है, गुरुजी की मेहरबानी है। गुरुजी लगातार मुझे सत्संग सुना रहे हैं कि तुम्हारे घर में किसी की मृत्यु होने वाली हो उस तरह, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि वो सत्संग के माध्यम से सारा कष्ट को काट देंगे। दूसरा, उन्होंने ये भी मुझे मेरे बेटे से रिलेटेड भी बहुत सारे सत्संग सुना रहे हैं जिसमें उसके साथ कुछ गलत होने वाला है और उसको लोग फंसाने वाले हैं। तो प्लीज़ गुरुपा आप देख लीजिएगा। आप मेरा पूरा परिवार आपके हवाले गुरुपा। आपको मैंने कंप्लीट सरेंडर कर दिया है गुरुपा, और अब आप ही देखिए और सब कुछ आप ही देखिए। मैं आपकी सत्संग सुनूंगी, आपको शुक्राना करूंगी, बस मेरा यही काम है गुरुपा। मुझे बड़े मंदिर का भी बुलावा दिया उन्होंने, मैं होके आई हूँ संगत जी। और एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि 7 तारीख को गुरुजी का जन्मदिन है, तो मुझे यहाँ पे एक संगत आंटी ने 1 हफ्ते का सत्संग करेंगी मेरे सोसाइटी में और हमें जाना है। गुरुपा की आज्ञा हुई तो मैं 7 दिन उनका सत्संग अटेंड करूँगी। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ये मेरा आज का बहुत छोटा सा एक शुक्राना सत्संग था
था। मैं शुक्राना करने की मेरी औकात नहीं है गुरुपा को, बट मैं उनको ट्राई करती हूँ कि हर दिन उन्होंने मुझे बोला है कि तुम जितना शुक्राना शेयर करोगी तुम मेरे से उतना कनेक्टेड रहोगी, तो मैं उनसे हमेशा कनेक्टेड रहना चाहती हूँ और हर दिन रहूँगी। मैं आज सुबह से चाह रही थी कि मैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग शेयर करूँ, बट पता नहीं क्या हो रहा था, कभी कोई कुछ, कभी फ़ोन, कभी ये वो, कभी दिमाग से उतर जाना। लेकिन शुक्राना शुक्राना आनंदम शुक्राना गुरुजी महाराज, संगत जी, गुरुजी को शुक्राना करके ही हम उनके जितने भी अपने कर्म कष्ट कटवा सकते हैं, और उनका तो एहसान हम चुकाने की औकात ही नहीं है, बट उनको अपने श्रद्धांजलि कुछ अर्पित कुछ भी कर सकते हैं। तो ये शुक्राना का माध्यम है। गुरुजी का शुक्राना सत्संग बहुत अच्छा होता है। और एक मैं आपको बताना चाहती हूँ संगत जी, क्योंकि मेरे मन में भी जो टाइटल बहुत गलत दिखते हैं तो हमें बहुत डर लग जाता है और बुरा लगता है, लेकिन वो शुक्राना सत्संग आप ज़रूर सुना कीजिए, क्योंकि उसके अंदर कुछ भी नहीं होता है, और उस माध्यम से गुरुजी आपका बड़ा सा बड़ा कष्ट आपका और आपके परिवार का हटा देते हैं। और ये शुक्राना सत्संग जो है ये ज़्यादातर सुनना चाहिए लोगों को, क्योंकि आप अगर अच्छे सत्संग आपको मिल रहे हैं वो तो अच्छा सबके साथ होगा ही जब गुरुजी से जुड़ गए तो, बट गुरुजी का मेन मकसद है कि आपके जो भी माड़े कर्म हैं, आपके कष्ट है, उसको कटे। तो आप ये जो अलग टाइटल वाले हैं, कुछ लोग पब्लिसिटी के लिए करते हैं, बट पब्लिसिटी आप गुरुपा को जब अरदास करोगे कि आपके पास ऐसे सत्संग आए जो जेन्युइन हो, वो वही सत्संग आएगा गुरुजी, वही सत्संग आएगा गुरुजी। तो गुरुजी का शुक्राना सत्संग आप प्लीज़ शेयर सुनिए और उसको लगातार सुनिए, क्योंकि उससे क्या होगा संगत जी, आपको उससे क्या होगा कि आपको ये शुक्राना सत्संग सुनने से आपके कष्ट कटेंगे और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी, और गुरुजी जो चाहते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी संगत जी, और आप हर तरफ से सेफ रहिएगा, कवच बना रहेगा। आपके बच्चे, आपके पति, आपके जितना परिवार है उसको सुरक्षित रखते हैं गुरुजी। तो मुझे लगातार गुरुजी 2 दिन से, जिस दिन से आंटी आईसीयू में गई हैं, मुझे वो लगातार पहले भी सुना रहे थे, अभी भी सुना रहे हैं, लगातार मैं वो सत्संग सुन रही हूँ। और शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मेरे हस्बैंड अंकल, बच्चों की तरफ से, सुधा आंटी की तरफ से, नेहा आंटी, नीति आंटी, चिंकी आंटी, मेरी मम्मी आंटी, बच्चे, आपके चारों दामाद, नातन नाती, मेरे ससुराल मायका, सबकी तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मेरे हस्बैंड के फ्रेंड अंकल, उनके तरफ से हर शुक्राना शुक्राना गुरुजी अंगार। मेरे रिलेटिव, मेरे दोस्त, सबके ऊपर अपनी मेहरबानी बताइए गुरुजी। पूरी संगत परिवार को ब्लेस कीजिए गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज आपके चरणों में ये शुक्राना सत्संग अर्पित है। आपकी आज्ञा होगी तो ये संगत तक ज़रूर पहुँचेगा, और मुझे अब अपने शुक्राना सत्संग को अटेंड करने, जो 7 दिन का चलेगा मेरे सोसाइटी में, हर दिन मैं आपके शुक्राना सत्संग में आ पाऊँ और मुझे अपनी ब्लेसिंग फील करवाइए गुरुजी। आपकी मैं सेवा करना चाहती हूँ, अपने चरणों में रखिए। मेरे माड़े कर्म को काष्ठ में कभी भी मेरे अंदर घमंड का एक दिन का भी आने नहीं दीजिएगा गुरुजी। बिन बोलिया सब जानता है तू, बिन बोलिया सब जानता है तो। मेरे गुरुपा बहुत क्यूट है, प्यारे हैं, स्वीट है। हर हर महादेव, महादेव के बच्चे हैं, गणपति बप्पा मोरया। अगली बरस तू जल्दी आ गुरुपा, मेरे घर में गणपति के लिए आप आओ और 10 दिन के लिए आना, और आप ढेरों सारे ब्लेसिंग्स लेके आइए गुरुपा। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू गुरुपा। हर सांस के लिए, हर माड़े कर्म को काटने के लिए, शुक्राना सिखाने के लिए, शुक्राना शेयर करना सिखाने के लिए, मुझे मम्मी आंटी की सेवा की ब्लेसिंग देने के लिए, मुझे परिवार को चलाने की ब्लेसिंग देने के लिए, मुझे इतनी सुंदर काया देने के लिए, इतना अच्छा शरीर देने के लिए, इतना अच्छा दिमाग देने के लिए, इतना अच्छा कोर्स देने के लिए, इतना अच्छा मम्मी पापा देने के लिए, इतनी प्यारी संगत परिवार देने के लिए, आपका मेरा ज़िंदगी में आना, ये सबसे बड़ी शुक्राना है गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। कुछ भी भूल चूक हो गया होगा संगत जी तो मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा, अपनी गुरुपा की बेटी समझ के माफ़ कर दीजिएगा। मेरे से जो भी बुलवा रहे हैं, गुरुपा बुलवा रहे हैं, किसी को भी कोई भी आहत करने का मेरा कोई भी योजना नहीं है, या कुछ भी मैं जानबूझकर नहीं बोल रही हूँ। मुझे जो भी बुला रहे हैं गुरुजी बुलवा रहे हैं। अनंतम 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 शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी ने अपने सत्संग शेयर किए हैं, स्वयं का भी कल्याण किया है और अपने पूरे संगत परिवार का भी कल्याण किया है। गुरुजी महाराज के पावन वचन के अनुसार जेड़ा सत्संग करता है ओदा भी भला, ते जेड़ा उस सत्संग ਨੂੰ सुनता है ओदा भी भला।
सत्संग का श्रवण करने वाली आप सभी प्यारी संगत जी को भी अनंतम शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।